Assalamu alaikum dear students. Welcome to our English class 3. Let's start the video. Today we are going to do the exercise of unit number 5. Please open page number 56. First we will learn the sounds, consonant and vowels. आपको पता है consonant sounds क्या होती हैं और vowel sounds कौन सी होती हैं. Vowel letters होते हैं A, E, I, O, U. All the other letters except vowels are consonant. और ऐसे कुछ words हैं जो consonant sounds और vowel sounds में differentiate भी करते हैं. Below is the given list of words. Tell whether words begin with a vowel or consonant. Place them in the relevant column. यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा ऐसा word है जो consonant से start होता है और कौन सा ऐसा word है जो vowel से start होता है. जैसे animals starts with a vowel sound. It will go in the first column. Ball is a consonant, starts with a consonant sound. इसी तरह आपने सारे वर्ड्स प्रोनाउंस करके देखने हैं, फिर उनको उनके रेलिवेंट कॉलम्स में लिखना है. Read and practice the given dialogue. There are two students or probably three, Azam, Zan and Osama, and they are talking about something. Let's see, हम देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं. Azam says, "Hello Zan." "Hello Azam. Look at the birds. They are beautiful." Zan says, "There is a parrot above my head. It is very nice. Above my head. It is very nice. Do you like it?" "Oh, I dislike it. There you can see the peacock. I like that. There is the owl and a cuckoo bird. I dislike them. I also dislike. We can see the eagle also." "Who are standing near the peacock?" "A boy and a girl are standing near the peacock." "What are you doing?" "We are admiring the beauty of the peacock." And Azam says, "We had a nice time today in the park." अब ये तीनों पार्क में हैं. उन्होंने कुछ बर्ड्स देखे हैं जिसमें से एक तो है आपने देखा कि पीकॉक है और उसके बाद हमने देखा ईगल है और उसमें और क्या कौन सा बर्ड था, पैरट. यस, सो देयर वर 3 बर्ड्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ दीज बर्ड्स. एंड इसमें सबसे प्यारा बर्ड कौन सा है, पीकॉक. So birds are very good and they add beauty to our nature. So they are talking about birds. You can also talk about birds or any favorite animals with your friends and practice it. My dear students, answer the following questions in your notebook. You have read the story and now you have to answer the questions given there. Why did the farmer need the water? The farmer को पानी की ज़रूरत क्यों थी? Find the answer in the story. What did the neighbor say when the farmer came to draw the water next day? Whom did the king ask to resolve the issue? बादशाह ने किसको issue resolve करने के लिए कहा था? Does the farmer get the justice at the end? क्या farmer को आखिर में इंसाफ मिला? What lesson do you learn from the story? और आपने इस लेसन से क्या सबक सीखा? Complete the table of content and answer the following questions. यहाँ पे देखें जैसे हमारी बुक का टाइटल दिया हुआ है और फिर उसके साथ टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से लेसन होंगे और सपोज कौन से पेज पे होंगे. अगर ऐसा हो तो हमने सबसे पहले यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, हमने उनके आंसर करने हैं. प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ कंटेंट. What is the title of the book? टाइटल क्या है बुक का? Modern English Class 3. Okay. The second is write the names of the unit on page number 15. जो 15 पे जो यूनिट है उसका नाम लिखें, उस यूनिट का नाम लिखें. अब देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो द फर्स्ट जो लेसन है वो पेज 16 तक गया है. इसका मतलब है जो फर्स्ट यूनिट है वही पेज नंबर 15 पर है. द ग्रेटनेस ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. राइट द नेम ऑफ यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 का नाम लिखें. यूनिट नंबर 4 का नाम है फ्रीडम डे. ओके. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स और हमने इनके सिलेबस ढूंढने हैं. सोर्स, कनिंग, ड्रॉ, अपसेट, जस्टिस, हैपन, सोल्ड. अगेन लिखा है या नहीं, वो सोर्स है. राइट, इमीडिएटली, अपोलोजाइज. रीड द गिवन साइट वर्ड्स. रेस्ट, supper, catch, break, heart, tree. See the words carefully and circle the correct spelling in each row. ये हमने पहले भी किया हुआ है, हम यहाँ दोबारा देखेंगे. हमने चेक करना है कि हर रो में कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है. जैसे ब्रिज के 3 स्पेलिंग दिए हुए हैं, ब्रिज, 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 एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट. इसी तरह इंटेलिजेंट, रॉकेट, जस्टिस, फार्मर, विजडम एंड राइट. So you have to select the correct spelling in each row. My dear students, in grammar section we will do proper noun.
ऑल द नेमिंग वर्ड्स विच हैव पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम, जिनके कोई ख़ास नाम होते हैं। जैसे कोई बच्चा है, जब वो दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले हम उसको एक नाम देते हैं। उससे पहले वो एक बेबी होता है, फिर हम उसको एक नाम दे देते हैं, तो डैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। अकबर इज़ अ गुड क्रिकेटर, इसका मतलब है कि अकबर इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय। ही लिव्स इन पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री। कॉमन नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स विच हैव जर्नल नेम्स दे आर कॉमन नाउन, जो जिसका वैसे ही हम जर्नली बात करते हैं। जैसे हम कहें डैड द बॉय इज़ अ क्रिकेटर, सो इसका मतलब बॉय जर्नल है, क्योंकि सारे ही बॉयज़ ही होते हैं, लेकिन उनको अगर नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। इसी तरह ही लिव्स इन अ कंट्री, तो इन अ कंट्री का मतलब अगर हमने कहा ही लिव्स इन पाकिस्तान तो वो प्रॉपर हो गया, लेकिन अगर हमने कंट्री कहा तो वो कॉमन हो गया। ही स्विम्स इन द स्ट्रीम, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। अंडरलाइन द कॉमन एंड इनसर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन लाइन। प्लीज आप इसमें देखें कि कॉमन और प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं। याद रखिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन अलग अलग करने हैं और नीचे दिए हुए कॉलम्स में लिखने हैं। The words are Pakistani, underpass, country, martyr, defender, respect, Azam, parents, folk, hospital, dad, duty, scientist, flag, creator, participant, river, Faisal Masjid, Illama Iqbal, factory, hero, glacier, operate, nurse, doctor. अभी हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी किसी भी सेंटेंस को ज़रूरी होते हैं पूरा करने के लिए। मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन अ सब्जेक्ट यानी नाउन एंड देन अ वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट। लाइक अहमद ईट्स एन एप्पल, अहमद ईट्स, यहाँ ईट्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और एप्पल। Remember the subject must always agree with the verb. Subject he, she, it, name need verb with s or es. Subject I, we, you, they, names need verb without addition of s और es. अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी हम उसके वर्ब के साथ s या es लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ईट के साथ s लगा हुआ है क्योंकि नाउन सिंगुलर है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ s और es नहीं लगेगा। ही, शी, इट ये किसी का नाम होगा तो वी विल राइट प्लेज, एंड आई, वी, यू, दे नेम होगा तो वी विल राइट प्ले। Label the subject, verb and object in these sentences. Write an S under the subject and a V under the verb and a O under the object. We will also learn the use of do, have and be. Have के लिए हम क्या करते हैं? Have is used with some pronouns and plural nouns. I have, I के साथ और you के साथ हमेशा have use होता है। I have a great English teacher. You have toothpaste on your chin. You have a meeting at 12:30 p.m. Nurses have a difficult job. And has हम singular noun के साथ use करते हैं। She has a good personality. He has a new haircut. The washing machine has a leak in it. It has a hole near the door. Fill in the blanks, आपने has या have लगाना है। Singular noun के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं। यूज ऑफ बी, बी इज अ फॉर्म, बी इज अ इरेगुलर वर्ब फॉर्म विद सेवरल फॉर्म्स। जैसे बी के लिए प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं और पास्ट में हम वाज और वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन कॉलेज एट द मोमेंट। वेयर इज शी? ही वॉज हर फर्स्ट हस्बैंड। वेयर यू एट द U2 concert. The weather has been really nice since June. Fill in the blanks with correct form of be. I dash sick. I am sick. They dash very good people. They are very good people. So आपको options दी हुई है, आपने उसमें से correct लिखना है। यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? Let's write, describe the series of the picture in your own words with correct punctuation. यहाँ पर एक पिक्चर्स की सीरीज दी हुई है, आपने इसकी स्टोरी लिखनी है। दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है लाइन एंड माउस की। पहले माउस उसको तंग करता है, जब माउस उसको पकड़ लेता है, लाइन उसको पकड़ता है और गुस्सा होता है तो वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर एक दिन लाइन को पकड़ लिया जाता है, एक शिकारी पकड़ लेता है और माउस उसकी हेल्प करता है। इसी तरह लाइन और माउस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। What moral lesson do you learn from the series of picture story?
आपको इस स्टोरी में से क्या लेसन मिलता है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारी मदद भी ज़रूर करेगा. राइट अ फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर. यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, आपने इसके बारे में क्वेश्चंस लिखने हैं, सेंटेंसेस नहीं लिखने. मीन्स हाउ मेनी पीपल आर देयर, where is the room, where are the boy, what are the boy doing, what are the girls doing. So you can write what is on the table, many sentences like this. Okay, write it on your notebook. WH questions, यहाँ हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उनका आंसर लिखेंगे. My dear students, this was the end of the lesson. We will come in the next video with the new exercise. Till then, take care. Allah Hafiz.